Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Way Came to Glory. Here in this video we are going to learn alkene with its nomenclature. But before that, if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified every time about my upcoming videos. Okay, so let's start. See, alkene and its nomenclature. Alkene. Actually, the position of alkene in our hydrocarbons is that basically hydrocarbons divided into open chain hydrocarbons. Okay, hydrocarbons divided into first one open chain and it is closed chain. In that closed chain, it is also called as cyclic. Open chain hydrocarbons, these are aliphatic open chain hydrocarbons. Okay, this portion is repeated lot of times in our video because it's a basic portion of alkane, alkene and alkynes. Okay, so we have to start our alkane, but before that we must know what is the position of alkene in our hydrocarbon family. That open chain hydrocarbon divided into first one, what is that? Saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbon is called alkanes and all the information about the alkane is completed in our previous videos. Now in this video, see, we have to we have to learn the alkane. That unsaturated hydrocarbon divided into two types, alkenes as well as alkynes. See, alkenes. Alkenes, it means that the carbon which is attached to other carbon by double bond. Alkyne means the carbon-carbon ट्रिपल बॉन्ड. मीन्स बच्चों, जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे अल्कीन कहते हैं. जब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे अल्काइंस कहते हैं. इन तीनों के नाम में देखो कितना डिफरेंस है. जब कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन है, अगर डबल है तो ये ए का ई हो गया, ए एन ई रिप्लेस्ड बाय ई एन ई, and then after that triple bond में it get converted into YNE. It means that open chain hydrocarbon, that is aliphatic open chain hydrocarbons, they are nothing but alkane, alkene and alkyne, as it is a very large portion. In case of that alkane, alkene and alkyne, first of all introduction, their isomerism, nomenclature, methods of preparation, chemical reactions, all these things. Therefore, I have split up that portion into two or maximum parts. That is near about 3 to 4 या फिर 4 to 5 parts. So for that, it's our part 1. Okay. So see here, just focus on that alkene. See, alkene have general formula, that is CnH2n, where N started from 2, 3, 4 and so on. See बच्चों, N की कीमत हमेशा 2 से स्टार्ट होती है. अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये भी हम देखते हैं. C, यहाँ पे आपको N की जगह पे 1 डालना है, तो C हियर C1, H2 into 1, CH2. Okay, CH2, valency of carbon atom is 4.
and here only 2 hydrogen atoms are there, and there will be no another hydrogen atom in which it can be performed or it can be formed a double bond with that, as it is alone. ये अकेला है. अगर ये अकेला है तो वो किसके साथ अपनी वैलेंसी शेयर करेगा या फिर वैलेंसी को फुलफिल करेगा. इसीलिए n की वैल्यू हमेशा 2 से स्टार्ट होती है. लेकिन इसका नाम क्या है? एक्चुअली इट हैज अ 2 वैलेंसी एंड इट्स नेम इज एक्टिव मिथिलिन group. Okay, active methylene group. It is not a compound, it is called as group. But in our alkane we have started n is equal to 2. If n is equal to 2, then what do you get? C2. एक बात हमेशा याद रखना, अल्कीन के लिए CnH twice n, जितने n है उतने, इट मीन्स दैट n की कीमत जितनी भी है कार्बन के तरफ, तो उसके डबल आपको हाइड्रोजन करने हैं. यानी आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है. जैसे कि ये 2 है, तो ये 2 है, तो हमेशा याद रखो हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 2 2 जा 4, 2 into 2, that's why it is the 4. Don't write here the is equal to, because is equal to sign is looking just like a, or it is just like our double bond. If you put dash, then it is the single bond. If you put 1 point, then it is treated as a radical or electron. So see here, C2H4. You know, when there is a 2 carbon atom, the parent alkane is ethane. So first of all, the name is ethane. So here, as there is a presence of double bond, that A cancel by E. इस तरह से याद रखना है आपको, A replaced by E, that is the ethene. But दूसरा भी तरीका ये है कि आपको रूट वर्ड लिखना है इथ, और अल्कीन का सरनेम तो ईयनी है, ईयनी अटैच करना है. दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो. If I put n is equal to 3, then we get C3H 2 into 3, giving rise to C3. Obviously 3 2 जा 6 या फिर 2 3 जा 6. So prop ये नाम है अपना रूट वर्ड. सो इसे हम ईयनी लगाएंगे. सो ये बन गया प्रोपेन. अभी ब्यूट, Cn is equal to 4 पुटअप करना है. C4H 2 into 4. सो बच्चों ये क्या बन गया? 2 4 जा 8. सो ये है ब्यूटीन. आई बात समझ में? इसी तरह से आप और भी कर सकते हो. 5वां में करके दिखाऊंगी, बाकी आप कर सकते हो. अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो. 5 2 जा 10. सो ये है पेंट अपना रूट वर्ड, और इसे लग जाएगा अपना ईयनी. सो तो क्या होगा ये? सी n is equal to 5, C5H10 पेंटेन. ये इस तरह से हम कितनी भी सीरीज बढ़ा सकते हैं. नीड नहीं है हमें कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की, अप टू डिकीन तक सफिशिएंट है. सो दीज आर अवर nomenclature, these are our series in which alkenes put up. So see here, we have to learn which type of structures or the structures and its nomenclature किस प्रकार से करते हैं. See here, if I have CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ. लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. जितने एग्जाम्पल्स आप लेना है, आपको लेना है, उतने एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो. सो सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. ये अपना फर्स्ट रूल रहता है. देन आफ्टर दैट गिव द नंबर एंड द डबल बॉन्ड हैविंग द लिस्ट पॉसिबल नंबर. डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर आना चाहिए.
सो मैं यहां से काउंटिंग करूंगी तो भी ये 2 नंबर पे आता है, यहां से काउंटिंग करूंगी तो भी ये 2 नंबर पे आता है। सो 1 2 3 4। सो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सी हियर 2 ब्यूटेन। 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, लेकिन ये जस्ट लाइक ये ओल्ड मेथड है। रिसेंटली कैसे लिखते हैं? यहाँ पे ये 2 जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम दोनों के बीच में लिखते हैं, ब्यूट टू यानी इस प्रकार से इसे नाम दिया जाता है। देन आफ्टर दैट अगर इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं इलोंगेट करती हूँ, डबल बॉन्ड सी, CH3, CH2, CH3। सी हियर मैं रैंडमली स्ट्रक्चर ले रही हूँ, यानी हम किसी भी स्ट्रक्चर का नाम रख सकते हैं। सी हियर CH3, CH, डबल बॉन्ड C, CH3, CH2 एंड CH3। यहां से काउंटिंग करूंगी तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से काउंटिंग करूंगी तो 3 नंबर पे आ रहा है। सो मुझे तो देना है डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर, इसीलिए 1 2 3 4 5। ओके, नॉमेनक्लेचर में आप हम यहाँ पे देख रहे हैं IUPAC सिस्टम। सो IUPAC के हिसाब से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से इसका नाम क्या रहेगा? सी हियर 3 नंबर पे मिथिल ग्रुप है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 मिथिल। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, सो 2 नंबर तो लिखना ही है मुझे, लेकिन अपने अल्किन के नाम के बीच में डालना है ये नंबर। टोटल 5 कार्बन एटम्स आर देयर एंड हेंस पेंट 2 यानी, सो नाम रहेगा बच्चों 3 मिथिल पेंट 2 यानी। जैसे ही IUPAC स्ट्रक्चर इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। देन सी हियर अगर आपको कॉमन सिस्टम से चलना है, सो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम प्रोपीन कहेंगे IUPAC सिस्टम से। लेकिन अगर प्रोपीन के जगह पे मुझे अलग नाम देना है, IUPAC नहीं देना है, सो मैं क्या करूंगी यहाँ पे? सो सी हियर PROP, प्रॉप, ये रूट वर्ड तो कंफर्म है हमारा, उसके सामने क्या लगाना है? YLE यानी, जैसे यानी ये सरनेम है अपना IUPAC लगाने के लिए, YLE यानी ये सरनेम है कॉमन सिस्टम का। सो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, जो भी आप नाम लिख रहे हो उसके लास्ट में आपको YLENE लगाना है। सो ये सिंपल सा रूल है अल्कीन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म डेफिनेशन ये कैसे है? बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि मैंने तो अल्केन में आइसोमेरिज्म पढ़ा था, अभी ये अल्कीन में कहाँ से आया? कैसे है ना बच्चों, जो नए हैं केमिस्ट्री सीखने वाले उनके लिए थोड़ा ये कंफ्यूजन मैं दूर करती हूँ। आइसोमेरिज्म ये एक कॉन्सेप्ट है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, इसे कहते हैं आइसोमर्स। अगेन आई विल रिपीट, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural arrangement called as isomers, and the phenomenon for forming these isomers called as isomerism। तो ये कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कौन सी भी फैमिली को लग सकता है, यानी अल्केन्स के लिए उसका आइसोमेरिज्म अलग रहेगा, अल्किन्स के लिए इसका आइसोमेरिज्म अलग रहेगा। सो बेसिकली आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन एक ही है, लेकिन उसके अंदर का टॉपिक डिफरेंट है। सो सी हियर isomerism, compound having same molecular formula and different structural arrangement, same molecular formulae and different structural arrangement, इसे कहते हैं आइसोमर, और इस फिनोमिनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, सो ये है अपनी आइसोमेरिज्म।
Basically, isomerism of alkene classified into two major groups, and these groups are, first one, structural isomerism, and second one is the geometrical isomerism. Geometrical isomerism. See बच्चों, compound having the same molecular formula but different structural arrangement, ये है isomers और इसे कहते हैं isomerism. There are two classifications. There is divided into two groups, structural isomerism and geometrical isomerism. ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी इसी प्रकार से रहेगी, बस उसमें थोड़ा सा एडिट करना है. क्या एडिट करना है देखना. कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट इट हैज ए डिफरेंट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है ऑलरेडी उसमें है, लेकिन स्पेसिफिकली फोकस किया गया है स्ट्रक्चर्स पे. सो इट हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. such isomers called as structural isomers and the phenomenon called as structural isomerism. Geometrical isomerism ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Geometrical isomerism कैसे है ना कि it is or it has been divided into again two types. First one is cis isomer and second one is trans isomer. और उसके फिनोमिनन को सीस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं. सो सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फोकस ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड देन वी हैव टू फोकस ऑन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके, अच्छा लग रहा है ना बच्चों? बहुत ही सिंपल है और ये बेसिक वीडियोस कंप्लीट एक बार देखने के बाद कितनी भी डिफिकल्ट केमिस्ट्री है तो वो आपको इजी लगेगी. इसीलिए ये बेसिक वीडियोस आपको देखने हैं. सो अगेन लेट्स फोकस ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर ही देखना है, बाकी नहीं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो स्ट्रक्चर ही देखना है का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट रहने चाहिए. Actually, the basic structural isomerism have been divided into again large number of types, but we have to focus on the structures only in this video. Okay, so see here, first one. Let's consider for isomerism there will be minimum 4 carbon atoms. So consider 4, C4H8, and the name is butene. ENE. See here, 1, 2, 3, 4. सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड देके बताऊंगी. CH2, CH, CH2, CH3. इसका नाम रहेगा ब्यूट 1 ENE. अब दूसरा स्ट्रक्चर, सेम 4 कार्बन एटम्स बना रही हूं मैं, बस मैंने पहले नंबर पे डबल बॉन्ड दिया था, अभी मैं सेकेंड नंबर पे दूंगी. तो ये स्ट्रक्चर्स किस प्रकार के रहेंगे? CH3, CH, CH, CH3 और इसका नाम रहेगा ब्यूट 2 ENA, क्योंकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए. और तीसरा सेम फॉर्मूला, सी हियर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर्स देखो कितने अलग अलग है और आप हर एक की एडिशन कर सकते हो, आपको C4H8 ही मिलेंगे. तीसरी बार है ना बच्चों, मैं थोड़ा सा अलग लिखूंगी. यहाँ पे मैं नीचे ब्रांच बना रही हूँ. सो यहाँ मैं आपको डबल बॉन्ड बताती हूँ. सो CH2, ये चारों वैलेंसीज फुलफिल हो गई है और ये भी. सी हियर, 3 2 6, 6 + 2 8 और 4 कार्बन एटम. अब मैं यहाँ पे 1 2 3 काउंटिंग करूंगी फॉर अवर नॉमेनक्लेचर. 2 नंबर पे मिथिल है, इसीलिए यहाँ पे लिखना है 2 मिथिल. और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, टोटल 3 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में. सो 2 मिथिल prop 1 ENE. 2 मिथिल का मतलब 2 नंबर पे मिथिल है, prop का मतलब 3 कार्बन एटम्स है और डबल बॉन्ड का मतलब ENE है. 1 नंबर पे है इसीलिए 1 ENE.
सो बच्चों ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. देयर आर टोटल 3 स्ट्रक्चरल isomers and together phenomenon called as structural isomerism. The compound having same molecular formula but they are differ in their structures and such structures called as structural isomers and the phenomenon called as structural isomerism. Is it okay? See, now let's start. What is that? Our remaining? Yes, geometrical. Geometrical isomerism. See here, geometrical isomerism क्या है? Geometrical isomerism का बेसिकल मीनिंग यही है कि प्रेजेंसी ऑफ सिमिलर atoms or groups of atoms along the same side of doubly bonded carbon atom or along the different side of doubly bonded carbon atom. I'll repeat. See, geometrical isomerism, इसमें cis और trans ऐसे दो पार्ट आते हैं बच्चों. अभी अभी मैंने C4 का एग्जाम्पल लिया, इसीलिए मैं इसी एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करती हूँ. See here, geometrical isomerism basically depends upon the attachment along the doubly bonded carbon atom. डबली बॉन्डेड कार्बन एटम का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसी को लेके आपको बताना है कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है. सो सी हियर, सिस और ट्रांस मैंने यहाँ पे ये लिया है और उसके भी पहले मैं क्या करूंगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ब्यूट 2 ENA, ये एग्जांपल्स लेके बताऊंगी. CA डबल बॉन्ड C मैंने दोनों तरफ लिख लिए. इन दोनों के पास हाइड्रोजन है तो मैं क्या करूंगी बच्चों, यहाँ पे H दोनों को एक साइड से लगाऊंगी और रिमेनिंग CH3 अनदर साइड से लगाऊंगी. सो ये देखो स्ट्रक्चर कैसे बन गया. Along this carbon-carbon doubly bonded, both hydrogen atoms along the one side and CH3 along the other side. It means that the atoms or groups of atoms, they are present on the same side. अगर ये same side में present है तो इसे कहते हैं cis isomer. क्या कहेंगे इसे? cis isomer. लेकिन अगर ये ट्रांसपोजिशन पे, ट्रांस का मतलब इन शॉर्ट याद रखो डायगोनल साइड में. सो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3. सी हियर, सेम एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट अलोंग द डायगोनल साइड और इन द ट्रांसपोजिशन अलोंग द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. ऐसे सिचुएशन पे इसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर. समझ में आया? एंड द फॉर्मेशन ऑफ सीस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन कैसे बनाओगे? कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफर इन देयर सीस एंड ट्रांस पोजिशन. It is called as cis and trans isomers and the phenomenon called as, yes, geometrical isomerism. So see here, geometrical isomerism, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में सेम, दूसरे साइड में भी सेम, तो cis. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में और दूसरे साइड में अलग अलग है, लेकिन डायगोनली देखा जाए, डायगोनली का मतलब ऐसे और ये ऐसे और यहाँ पे ये ऐसे, तो ये सेम सेम है और ये डायगोनली सेम है. जो डायगोनली सेम लगते हैं वो ट्रांस रहेंगे और जो सिमिलर रहते हैं वो सिस रहेंगे. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस isomerism concept in alkane. As I have already told you that alkene portion, so much large portion, it cannot be finished in single video, and because of which there is a part, okay, near about 3 to 4 parts required to complete this alkene totally. So in this way we have finished our first part of alkene with its basic information.
Okay, thank you for watching my video, and please do like, share and subscribe. Okay.